Hello dear children, welcome back to the Knowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 5. So children, this is your SST book and the name of your book is Time Travelers Unraveling Histories Mysteries. So today children, we are going to do chapter number 8 and the name of the chapter is Deserts. So here children, you have to name the two places and explain the difference you observe between them before the class. So here you can see there are two pictures. एक में आप देख सकते हो बहुत सारे trees हैं, water है, but जो second picture है उसमें ना तो कोई tree है ना कोई water है, सिर्फ आपको sand दिखाई देगा. So these two places are different from each other. क्या difference आपको दिखना है? That you have to tell. So this you have to do on your own. Now the first topic that we are going to learn today is formation of deserts. Deserts are areas which receive scanty rainfall. So desert वो area है जहाँ पे scanty means very less, जहाँ पे बहुत ही कम rainfall होती है. And experience extreme climate, और यहाँ का जो climate है बहुत ही ज़्यादा extreme, बहुत ज़्यादा गर्म होता है. Deserts can be formed due to many causes. So बहुत सारे causes हैं desert बनने के. क्या क्या हैं? They can be formed when the rain clouds are carried away from an area by wind, leaving the land dry. So एक पहला जो यहाँ पे reason दिया गया है कि जब यहाँ से rain वाले जो क्लाउड्स हैं उसे विंड अपने साथ उड़ा के ले जाती है, उस जगह पे बारिश नहीं हो पाती है, इसलिए जो है वो एरिया डेजर्ट हो जाता है. डेजर्ट्स आर फॉर्म्ड नियर माउंटेन्स व्हिच व्हेन माउंटेन्स कॉज क्लाउड्स. तो डेजर्ट कहाँ पे बनते हैं? माउंटेन्स के पास बनते हैं. व्हेन माउंटेन्स कॉज क्लाउड्स टू रेन ऑन वन साइड. सो माउंटेन्स जहाँ पे होते हैं वहां पे जो है क्या करते हैं माउंटेन्स? क्लाउड्स को रेन करने में रेन करवा देते हैं. मीन्स आपको पता होगा कि जब क्लाउड्स क्या है, जब वो माउंटेन से टकराती है तो वो वहीं पे सारा पानी बरसा देते हैं. दिस इज हाउ द गोबी डेजर्ट वाज फॉर्म. और इसी तरीके से गोबी डेजर्ट बना था. डेजर्ट्स कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्शन. सो ह्यूमन एक्शन की वजह से भी डेजर्ट बनते हैं. Deserts can be hot or cold. Desert hot भी हो सकते हैं और cold भी हो सकते हैं. For example, the Sahara Desert is hot desert and the Gobi Desert is a cold desert. So यहाँ पे दो desert के नाम दिए गए हैं. एक Sahara Desert है जो बहुत ही ज़्यादा hot है और जो second desert है वो है Gobi Desert जो बहुत ही ज़्यादा cold है. सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड. ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट डेजर्ट है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन. एक्सट्रीम क्लाइमेट इज द मेन कॉज ऑफ डेजर्ट फॉर्मेशन. सो क्लाइमेट के एक्सट्रीम होने की वजह से डेजर्ट बनते हैं. डेजर्ट्स आर फाउंड इन ऑल द थ्री क्लाइमेट जोन्स ऑफ द अर्थ. सो डेजर्ट जो है कोई भी क्लाइमेट जोन हो उन जगहों पे पाए जाते हैं. मीन्स टोटल 3 क्लाइमेट जोन है, उन सब जगहों पे आपको डेजर्ट मिलेंगे. हॉट डेजर्ट्स आर मेनली स्प्रेड बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री नॉर्थ. तो जो हॉट डेजर्ट है वो इसके बीच में आपको मिलेंगे. एंड 20 डिग्री साउथ एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड. They mainly lying in between or around the tropics. So ये जो deserts हैं वो ज़्यादातर tropics के आसपास होते हैं, चाहे वो tropic of Cancer हो या फिर Capricorn. Moreover, they are mostly located in the western region of the continents. ये जो है western region जो है हमारे continents के जो western part है वहाँ पे ज़्यादातर पाए जाते हैं. Some major hot deserts and cold deserts are given below. Let's read them. So here are the few examples of hot desert. First is the Sahara Desert, which is the biggest. It is in North Africa. Next is Kalahari Desert in South America, Arabian Desert in Asia, and Great Victoria Desert in Australia.
These are the 4 hot deserts जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और रेगिस्तान ही रेगिस्तान है. Can you think of the science behind extreme climate forming deserts? तो क्या आप इसके पीछे के साइंस को समझ सकते हैं कि कैसे एक्सट्रीम क्लाइमेट से जो डेजर्ट फॉर्म होते हैं? So here you can see the picture is given on the map जहाँ पे deserts located है. Now the cold deserts are Gobi Desert, Asia. It is the coldest desert. Patagonia Desert, South America. Atacama Desert, South America. And Namib Desert, South Africa. So these are the 4 deserts which are very cold. Now let's come to the climate. Deserts are arid or dry region and receive less than 25 centimeter of rain per year. So ये जो desert होते हैं वो बहुत ज़्यादा dry होते हैं. यहाँ का जो एरिया होता है बहुत ज़्यादा dry होता है क्योंकि यहाँ पे धूप इतनी ज़्यादा होती है कि sand भी एकदम गर्म होता है और atmosphere भी. They receive less than 25 centimeter of rainfall per year. एक साल में सिर्फ और सिर्फ 25 सेंटीमीटर रेनफॉल यहाँ पे होती है. Rainfall is measured in centimeter. They have dry and hot climate. और इसकी वजह से क्योंकि यहाँ रेनफॉल कम है इसकी वजह से यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होता है और हॉट होता है. During daytime the temperature may go as high as 50 degree Celsius. यहाँ पे जब गर्मियों का मौसम आता है या फिर जब दिन का टाइम होता है तो दिन के टाइम यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है. यू कैन नॉट बियर दैट टेम्परेचर. However, nights are usually cooler and may have temperature as low as 10 degree Celsius. लेकिन नाइट में आपको पता होगा कि सैंड जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी ही जल्दी वो ठंडा भी होता है. सो रात में यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो होता है 10 डिग्री सेल्सियस. The highest and the lowest temperature have been recorded in the desert of South Sahara and Antarctica. That is 57.8 degrees Celsius and minus 89 degrees Celsius respectively. So इन जगहों पे जब जो है टेम्परेचर को नापा गया तो देखा गया कि इतना था हाईएस्ट और ये था सबसे ज़्यादा लोएस्ट टेम्परेचर of that particular day. During the day, hot and dusty winds blow with great speed. जब दिन का टाइम होता है तो बहुत ही ज़्यादा गर्म और डस्टी मीन्स डस्ट से भरा हुआ जो हवा है वो बहता है हर तरफ बहुत तेजी से. These winds carry a lot of sand. और इन winds के साथ बहुत सारे sand को ये wind अपने साथ carry करती हैं. They are called sandstorms. So इसी को ही हम sandstorm कहते हैं. सैंड से भरा हुआ storm, सैंड का तूफान. These sandstorms shift the huge pile of sand called sand dunes from one place to another. So ये जब बहुत तेजी आंधी आती है, sandstorms आते हैं, तो ये बहुत सारे सैंड को एक साथ अपने साथ इकट्ठा करके एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाते हैं. और इन ह्यूज पाइल्स को इन बड़ी से जो ये सैंड का जो आप कह सकते हो पहाड़ है इसे ही हम सैंड ड्यून्स कहते हैं. Now let's learn about the plant life in desert. Desert में कैसा plant life है? Deserts have sparse vegetation. यहाँ पे जो vegetation है means जो plants हैं वो बहुत ज़्यादा कम grow करते हैं. In hot deserts, vegetation consists of thorny bushes which are well adapted to scarce water conditions. So ऐसे गर्म जगहों में क्या होता है कि ऐसे plants grow होते हैं जो जिन्हें बहुत कम पानी चाहिए होता है. तो ऐसी जगहों में कैसे plants grow होते हैं? Thorny bushes means कांटों वाले पेड़ यहाँ पे ज़्यादा पैदा होते हैं क्योंकि इन्हें कम पानी की जरूरत होती है. These are mainly concentrated around the oasis. So oasis क्या है? एक आप कह सकते हो कि pond टाइप का होता है जिसमें थोड़ा सा पानी आपको मिल जाएगा. So इन oasis के आसपास ही ये plants grow करते हैं. Oases are isolated pools of water and vegetation in desert. So अभी मैंने आपको बताया oasis क्या है?
आइसोलेटेड पूल ऑफ वाटर, वाटर का एक पूल है एंड जिसके आसपास आपको वेजिटेशन दिखाई दे सकता है. कैक्टस, अकेशिया, baobab and spinifex are found in Australian deserts. तो यहाँ पे कुछ प्लांट्स के नाम दिए गए हैं जो ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट्स में हमें मिलते हैं. Date palms are widespread and cultivated in the oasis of the Sahara. So ये जो date palms हैं ये सहारा डेजर्ट में बहुत ज़्यादा कल्टिवेट किए जाते हैं. Saguaro, yucca and Joshua trees are mainly found in the desert of North America. नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में ये सारे ट्रीज हमें मिलेंगे. इन कोल्ड डेजर्ट्स शॉर्ट श्रब्स एंड कोर्स ग्रासेस ग्रो इन समर. सो जो कोल्ड डेजर्ट्स हैं यहाँ पे शॉर्ट श्रब्स मीन्स छोटे छोटे श्रब्स आपको मिलेंगे और कोर्स ग्रासेस मीन्स बहुत ज्यादा आप कह सकते हो हार्ड ग्रासेस मिलेंगे इन समर. मॉस, हीथ, लिचिन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर आल्सो फाउंड इन दीस रीजन. सो ये भी कुछ तरीके के प्लांट्स हैं, कुछ आप कह सकते हो कि इंसेक्ट्स हैं जो हमें यहाँ पे मिलेंगे. Let's learn about the AI fact. The integration of AI tools and methods can help address detecting attribute drought as well as tracking the predicting its spatial temporal evolution. So जो AI tools हैं वो आगे मदद करेंगे ड्रॉट की कंडीशन को बताने में. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द वाइल्ड लाइफ. क्या वाइल्ड लाइफ है वहाँ पे? द कैमल इज वेरी यूजफुल फॉर ट्रैवलिंग इन द डेजर्ट. सो डेजर्ट एरिया में कैमल जो है बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है फॉर ट्रैवलिंग. इट हैज 2 sets of eyelets due to which sandstorm doesn't create much problem to it in traveling long distances in the desert. So जो कैमल होता है इसकी जो आईलिड्स होती है मीन्स आई लैशेस होती हैं, आप कह सकते हो आई के ये जो ऊपर का हिस्सा होता है आईलिड्स वो जो है 2 होती है इनके पास, जिसकी वजह से जो सैंड स्टॉर्म जब ये आंधी तूफान चलता है सैंड का वो जब हमारी आंखों पे आ जाएगा तो क्या होगा, हमारी आंखों में अगर चला गया तो हम आंखें बंद कर लेंगे. बट इनकी आईज को ये इफेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि जैसे ही ऐसा कुछ होता है इनकी एक आईलिड बंद रहती है और दूसरी खुली, जिससे इनकी बॉडी पे उसका कोई असर नहीं होता है. सो दे डू नॉट क्रिएट मच प्रॉब्लम टू इट इन ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस इन द डेजर्ट. इट इज देयरफॉर कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. इसलिए जो है सैंड कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है. इट कैन सर्वाइव ऑन लिटिल वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस. सो थोड़े ही पानी में काफी देर तक ये रह सकते हैं. When water is available, it can store it in a large volume in its body. So इनकी बॉडी में कुछ पार्ट ऐसा होता है जहाँ पे ये पानी मिलने पे उसे वहाँ पे स्टोर कर लेता है और उस पानी को ही ये यूज करते रहते हैं जब तक इन्हें दोबारा पानी ना मिले. Its padded feet are protected from getting burnt in the scorching heat of hot sand. So इनके जो पैर होते हैं, इनके जो फीट होते हैं, उनका जो हिस्सा रहता है बहुत ज्यादा ही पैडेड होता है, सख्त होता है जिसपे हीट का कोई भी असर नहीं होता. इसलिए ये इतनी ज्यादा गर्म रेत पे भी आसानी से चल लेते हैं. इंटरेस्टिंगली इन द गोबी डेजर्ट कैमल विद 2 humps आर फाउंड. अब गोबी डेजर्ट जो है वहां पे जो कैमल है, क्या आपको पता गोबी डेजर्ट इज द कोल्डेस्ट. सो यहाँ पे जो कैमल है उनके पास 2 हम्प्स हैं. दीज आर नोन एज बैक्ट्रियन कैमल और ऐसे कैमल को हम बैक्ट्रियन कैमल कहते हैं. These camels have a thick woolly coat, hairy eyelashes and ears and 2-toed hoof feet. So ये जो कैमल्स पाए जाते हैं यहाँ गोबी डेजर्ट में, इनके जो थिक वुली कोट होता है मीन्स इनके बॉडी पे फर इतना ज्यादा होता है कि इन्हें ठंड नहीं लगती वहाँ पे. हेयरी आई लैशेज और जो आई लैशेज हैं वो बहुत ज्यादा हेयरी होते हैं, लॉन्ग होते हैं, जिसमें सैंड वो आप कह सकते हैं ना ठंडी जो हवाएं हैं उसका कोई इफेक्ट नहीं होता या फिर आइस गिरती है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता. एंड ईयर्स एंड 2-toed hoof feet और 2 टोज वाले hoof feet होते हैं.
which help them to move from one place to another. Apart from camels, deserts are also known for venomous snakes. So camel के अलावा यहाँ पे जो snake पाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा venomous होते हैं, means जहरीले होते हैं. Scorpions, hyenas, desert foxes and various other species of animal. So snakes के अलावा ये सारे animals भी यहाँ पे पाए जाते हैं. Penguins are the main species found in the cold desert of Antarctica. So penguin जो है main है species जो अंटार्कटिका में पाई जाती है. Now people's life. Let's learn लोग वहाँ के कैसे रहते हैं. Deserts are sparsely populated. Tribes are mainly inhabited in desert. So जो deserts होते हैं वो populated होते हैं, कम populated होते हैं. Tribe जो यहाँ पे है वो desert में रहते हैं. And Bedouins, you can see the picture is here. Bedouins and Tuaregs in the Sahara, Pueblos in North America, African Indians in Patagonia, Aboriginals in Australian desert and Banjaras in India. So ये सारे वो लोग हैं जो क्या करते हैं, जो desert area में रहते हैं and they do not live at a single place. वो अपनी place को location को change करते रहते हैं. They lead a nomadic and pastoral life. ये लोग एक nomadic life रहते हैं. और nomadic people कैसे होते हैं, जो अपनी जगह को change करते रहते हैं, one place to another वो move करते रहते हैं with their family. These people mainly settle down near oases. ऐसे लोग जो है ज़्यादातर oasis के पास अपना घर बनाते हैं क्योंकि वहाँ easily उन्हें पानी मिल जाता है. Their livelihood depends on livestock, rearing, farming and trading. So इनका जो livelihood है means जीवन जीने का जो way है वो किस पे depend करता है, livestock पे means इनके पास जो भी animals हैं, भेड़ बकरियां जो भी ये पालते हैं वो, फिर फार्मिंग करते हैं ये लोग और जो भी सामान वगैरह बनाते हैं उनको ट्रेड करते हैं. सो इस तरीके से ये अपना गुजारा चलाते हैं. They rear camels, ये camels को पालते हैं, goats and sheep. They farm dates, millets and barley and trade in salt, dry fruits, rug and handicrafts. So ये सारे काम ये करते हैं, क्या करते हैं, ये डेट्स हम खाते हैं उनकी फार्मिंग करते हैं, मिलेट्स की फार्मिंग करते हैं, बार्ले जो है वो ग्रो करते हैं. इसके अलावा सॉल्ट का काम करते हैं, ड्राई फ्रूट्स, रग्स बनाते हैं और हैंडीक्राफ्ट्स का जो भी वर्क है वो ये लोग करते हैं और इससे ही अपना जीवन यापन करते हैं. डेजर्ट्स आर आल्सो स्टोर हाउस ऑफ इम्पोर्टेंट मिनरल्स लाइक ऑयल एंड नेचुरल गैस. सो डेजर्ट जो है स्टोर हाउस है कुछ इम्पोर्टेंट मिनरल्स का, जैसे कि ऑयल या फिर नेचुरल गैस. Many desert nations like Kuwait, Iraq, Iran and Saudi Arabia have made good use of the petroleum and natural gas buried under their sand. So अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो nations हैं जैसे कि कुवैत हो गया, इराक, ईरान या फिर सऊदी अरब, इन्होंने क्या किया, अपने जो भी पेट्रोलियम है या फिर नेचुरल गैस है जो इन डेजर्ट्स के नीचे है, इनका बहुत ही अच्छे से यूज किया और आज भी हम इनके ही दिए गए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ही यूज करते हैं. नाउ लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न. Deserts are areas which receive scanty rainfall and experience extreme climate. Deserts can be hot or cold. Deserts have sparse vegetation. Cactus, acacia, baobab, date palm and saguaro are some plant species found in deserts. Tribes who lead a nomadic and pastoral life are mainly inhabited in deserts. Now, let's come to the question and answers. What is a desert and how are deserts distributed on the earth? So, desert is the area where there is very less rainfall and it is a sandy area. And how are deserts distributed on earth? Every climate zone has a type of desert. There are 3 types of climate zones where
that there are a number of deserts. You have to write it down. What all are they? Now list at least 5 characteristics of a desert climate. Desert का climate कैसा होता है? इनकी 5 characteristics आपको लिखनी है. So you have learned. Now you have to write it here. Describe the vegetation of desert region. क्या क्या vegetation होता है desert region में? That also you have to write on your own. Describe the wildlife in cold desert. So cold desert है जैसे कि हमारा गोबी desert is a cold desert. So वहाँ का wildlife कैसा होता है? You have learned that the camel there have 2 humps और उनकी जो eyelashes हैं, their eyelashes are very long and woolly. Their body is very woolly. They have different kinds of feet compared to the other camels. So jot down all these points and complete the question answers. Write about the people life in desert. लोग वहाँ पे कैसे रहते हैं? How they meet their ends meet. So कैसे वो अपने जिंदगी का गुजारा करते हैं? That all you have to write here. So read the chapter again and complete the question answers. So children, with this we have completed the chapter, and if you have any queries related to the chapter, you can ask me in the comments, and I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay later.